محکمہ آباشی کی مبینہ غفلت مکینوں کے لیے خطرہ کوٹادو کے مقام پر سفربند دریائے سندھ کی لہروں کی نظر 15 روز کام کرنے کے باوجود بند نہ بچایا جا سکا 600 فٹ چوڑا شگاف ٹھیکیدار کی کارکردگی پر سوالیہ نشان مکین پریشان حکومت سے اقدامات کی اپیل مزید جانیں گے شفقت مولانا سے جی شفقت ہاں جی بالکل 8:34 سے جس پر میں اس وقت موجود ہوں 15 روز قبل یہ جو سپر بند ہے یہ مکمل تھا یہاں پہ ایک 22 کروڑ کے لگ بھگ اس کا فوری طور پر ایمرجنسی ٹینڈر کر کے اس پہ کام شروع کرا دیا گیا اہل علاقہ کے مطابق محکمہ ایریگیشن اور ٹھیکیدار کی نااہلی کے بعد یہ سپر دریا برد ہوا ہے کیونکہ 15 روز سے اس کی مرمت جاری تھی افسوسناک المیہ یہ ہے کہ 15 روز سے اس پہ پتھر کی پچنگ بھی کی جا رہی تھی جال بھی ڈالے جا رہے تھے کل صبح جو ہے یہاں پہ چیف انجینئر شاہد صاحب نے صبح اس کو پر وزٹ کیا تھا وہ اس بند کے متعلق بالکل مطمئن گئے تھے ان کا کہنا تھا کہ یہ کسی بھی قسم کے اس بند کو کوئی خطرہ اطلاق نہیں ہے لیکن شام کو مغرب کے بعد یہ سیپیج کرتے ہوئے یہ پورا ٹوٹ گیا میرے پیچھے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ 600 فٹ تقریباً چوڑا شگاف پڑا ہے یہ بند کا کچھ بھی نہیں بچا جتنی مالیت کے یہاں پہ پتھر ڈالے گئے تھے وہ سب دریا برد ہو گئے اس سائڈ پہ اگر دیکھیں میرا کیمرہ مین آپ کو دکھا سکیں تو یہ آبادیاں ہیں لوگوں کی کروڑ روپے مالیت کی یہاں پہ فصلیں ہیں وہ بالکل دریا برد ہو چکی ہیں لوگوں کو اب یہ ہے کہ اگر پانی کا ریلا مزید یہاں سے بڑھتا ہے تو یہ گھر بھی لوگوں کے دریا برد ہونے کا خدشہ یہ ہے اہل علاقہ کی جانب سے محکمہ ایریگیشن کو قصوروار ٹھہرایا جا رہا ہے ان کا کہنا ہے کہ 15 روز سے ان کو اتنا معلوم نہیں ہوا کہ سپر بند کون سی جگہ پہ کمزور ہے یہ اس کا جو ہے سپاٹ کی جگہ جو کارنر تھے اس کو مرمت کرتے رہے لیکن درمیان کی جگہ سے یہ جو اتنا بڑا شگاف پڑا ہے یہ انتظامیہ کی کارکردگی پر سوالیہ نشان ہے مقامی انتظامیہ ہر قسم کے یہاں پہ انتظامات کے لیے مسلسل یہاں پہ ڈی سی صاحب اے سی صاحب چکر لگاتے رہے لوگوں کی نقل مکانی بھی کی گئی ریسکیو نے بھی اپنی ڈیوٹی کے فرائض سر انجام دیے ایریگیشن نے بھی کیمپ لگائے رکھا یہاں پہ مرمت بھی جاری رہے لیکن خاطر خواہ کسی بھی قسم کے کوئی چیز اس سپر بند کو نہیں بچا سکی اب یہ ہے کہ اس کو دوبارہ پر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اہل علاقہ کے مطابق ایریگیشن ناکام مکمل طور پہ قصوروار ہے لیکن جو چیف انجینئر ہے ان کا کہنا تھا اور جو یہاں پہ سپرنٹینڈنٹ انجینئر تھے ہماری بات ہوئی ان کا یہ کہنا تھا کہ دعا کریں کہ یہ مزید یہاں پہ کٹاؤ نہ ہو کیونکہ یہاں پہ مین پاور بھی تھی مشین پتھر بھی تھے لیکن محکمہ ایریگیشن کی جانب سے پانی میں ڈوبنے کے واقعات کے پیش نظر ڈپٹی کمشنر لیا متحرک دریائے سندھ سمیت نہروں میں نہانے پر پابندی لگا دی تیراکی پر دفعہ 144 کے تحت پابندی عائد کر دی گئی ہے پانی میں ڈوبنے کے واقعات کے پیش نظر ڈپٹی کمشنر لیا متحرک ہو گئے دریائے سندھ سمیت نہروں میں نہانے پر پابندی لگا دی تیراکی پر دفعہ 144 کے تحت پابندی عائد کر دی گئی ہے بہاولپور میں ہبس اور گرمی کی شدت میں اضافہ شہریوں کی بڑی تعداد گیسٹوں کا شکار گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران بہاولپور کے عوام بجلی کے بھاری بلوں سے پریشان جولائی کے بلوں نے شہریوں کی مشکلات میں اضافہ کر دیا بہاولپور کے شہری مہنگے بلوں پر حکومت کے خلاف پھٹ پڑے کہتے ہیں کہ 3 مرلے کے گھر کا بل 31,000 آیا ہے صرف ایک ایئر کولر 2 پنکھوں کا بل 31,000 کیسے آ گیا حکومت بتائے اب کون سا سامان بیچ کر بل ادا کرے مزید کیا کہتے ہیں طاہر جویا ہمیں اپڈیٹ کریں گے بالکل جی مہنگائی کا نہ رکنے والا سلسلہ جو ہے وہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا بجلی کی قیمتوں جو ہیں وہ مسلسل بڑھتی جا رہی ہیں اور بھاری بھرکم بل جو ہیں وہ شہریوں کو موصول ہو رہے ہیں ہمارے ساتھ ایک شہری موجود ان سے بھی بات کریں گے میرے گھر میں ایک کولر ہے ایک پنکھا ہے ایک گھر ہے چھوٹا سا 3-4 مرلے کا میرا 3 مرلے کا گھر ہے اور میرے گھر کا بل جو 31,000 روپے کا بل آ گیا سر میں کہاں جاؤں تو میں نے جی کیا ٹیکس لگے اتنے ٹیکس لگا دی اتنی چیزیں لگا دی ہمارا تو بل بھرنا بہت مشکل ہو گیا ہے میں اپنے گھر کے کون سی چیزیں بیچوں پچھلے مہینے میں اپنے گھر کی چیزیں بیچی آپ اپنے گھر کا کیا چیز بیچوں یہ تو بل ہمارے سے نہیں بڑھا حکومت کو مہربانی گزارش ہے کہ ہمارے لیے کچھ کرے یہ تو منا ہم مر جائیں گے ہم تو بیکار ہو جائیں گے جی آپ بتائیں آپ کیا کہتے ہیں کہ حکومت جو ہے کوئی ریلیف دے شہریوں کو کتنا بل آپ کو کتنا ہے جی میرے خود کے پچھلے مہینے 199 یونٹ تھے اور انہوں نے کوئی پرو ڈیٹا کنزمپشن کر کے اسے 205 یونٹ کر دیا تھا تو سلیب چینج کر دیا اب 6 مہینے ہم نے یہ بھگتنا ہے میں دفتر کے چکر لگائے ہیں انہوں نے کہا ادھر جائیں آر پی او کے پاس جائیں آر پی او کے پاس ایس ڈی او کے پاس جائیں وہ کہہ رہے ہیں آپ بھریں ہم کچھ نہیں کر سکتے تو کوئی حکومت سے کوئی مطالبہ کہ آپ شہری کہاں جائیں مطالبہ تو اس ٹائم آپ کے سامنے اسلام آباد میں دھرنا چل رہا ہے
बिल्कुल जी, शहरी जो है वो भावलपुर के सरापा एहतजाज हैं। जुलाई का बिल जो है वो पहले बिल से भी दुगना आ गया है। 31,000 इनका बिल है और घर में सिर्फ एक कूलर चलता है औरतें हैं, और इनका यही मुतालबा है कि हुकूमत जो है इनको बिलों की मद में रैली फराहम करे। जी ताहिर, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। हालिया बजट में तनख्वाहों पर टैक्स में इजाफे का मामला, जायद टैक्स कटौती पर मुश्तमिल तनख्वाह जारी होते ही तनख्वाहदार तबका परेशान। जनरल सेक्रेटरी मुल्तान टैक्स बार इमरान गाजी की रोही से गुफ्तगू, कहते हैं तनख्वाहदार तबके के लिए बजट में 5 स्लैब्स की रेट्स में तब्दीली की गई है। पहले स्लैब में 6 लाख रुपए सालाना तनख्वाह वाले अफराद पर इनकम टैक्स लागू नहीं हुआ। इसी हवाले से उनका मजीद क्या कहना है, जानते हैं मेहर इमरान से। जी बिल्कुल, बात करेंगे नए टैक्सेस, नया बजट आने के बाद जो टैक्सेस बढ़े हैं, जहां पे दीगर तबकात मुतासिर हुए हैं, वहीं पे तनख्वाहदार तबका भी काफ़ी परेशान दिखाई देता है, क्योंकि टैक्स बढ़ने पर पहली तनख्वाह जैसे मसूल हुई है तो तनख्वाहदार तबका परेशान हो गया। कितने टैक्सेस बढ़े हैं, पहले एक तनख्वाहदार शख्स कितनी तनख्वाह जो है वो टैक्स देता था, कितनी तनख्वाह लेता था और अब कितनी दे रहा है। इस हवाले से हमारे साथ सीनियर कानूनदान हैं, मुल्तान टैक्स बार के जनरल सेक्रेटरी हैं इमरान गाजी साहब, उनसे हम जानते हैं। जो नए स्लैब आए हैं इसमें 6 लाख सालाना आमदन पर तो छूट दे दी गई है और पहले भी वही थी। जिसकी 12 लाख तक की आमदनी होगी तो वो 30,000 रुपये सालाना टैक्स देगा। ठीक है। और फिर 12 लाख से 22 लाख का दूसरा स्लैब कर दिया गया है और इस स्लैब का रेट जो एडिशन की गई है वो 15% कर दिया गया है। और इसको जो शख्स 22 लाख कमाएगा तो वो 1,80,000 टैक्स देगा। और फिर 22 लाख से 32 लाख का ये स्लैब बनाया गया है और इस स्लैब का जो रेट दिया गया है 25% दिया गया है। और जो 32 लाख कमाएगा तो वो 4,30,000 रुपये सालाना टैक्स देगा। और इसके बाद 32 लाख के बाद 41 लाख तक का स्लैब बनाया गया है और जो 32 लाख से ऊपर कमाएगा तो वो शख्स सालाना कमाएगा तो 30% टैक्स देगा। और 41 लाख से ऊपर 7 लाख रुपए वो पिछला टैक्स के साथ, जो 41 लाख तक 7 लाख है और उसके ऊपर फिर 35% तक का वो जो एक रेट हाई रेट है जो वो देगा। और उसके बाद सब जो एक शख्स जो 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा सैलरी कमा रहा है तो वो उस टैक्स का 10% मजीद सरचार्ज भी पे करेगा। पिछले साल को कंपेयर करें तो हम पिछले साल का जो स्लैब था वो 12% पर 2.5% था और 15,000 था, वो सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गया आपका 15 डबल कर दिया 15 से 30,000 रुपये। तो इस हिसाब से पिछले साल को कंपेयर करें तो पिछला जो हाई स्लैब था वो 60 लाख तक था, 60 लाख के ऊपर 35% था, तो 10,95,000 60 लाख तक बनता था। अब इस तरह उन्होंने एक तो तनख्वाह को स्लैब को डबल कर दिया है, तनख्वाह कम बढ़ाई गई है, 25% तनख्वाह जरूर बढ़ाई गई है, लेकिन स्लैब को उन्होंने बहुत ज़्यादा मर्ज करके कंबाइन करके और स्लैब के रेट बढ़ा दिए हैं और 41 लाख तक नीचे ले आए हैं। और 41 लाख के ऊपर जो थ्रेश होल्ड से ऊपर जो भी आमदन होगी वो 35% रेट होगा। और फिर टैक्स के ऊपर भी टैक्स लगा दिया, वो मैंने बताया कि 10% हर शख्स 1 करोड़ से ऊपर जो कमा रहा है तनख्वाहदार शख्स वो 10% मजीद टैक्स देगा। जी बिल्कुल, इस तरह जो टैक्सेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई हैं। पहली तनख्वाह जारी होते ही जो तनख्वाहदार तबका है वो काफ़ी परेशान है। 12 लाख रुपए जो साल का कमाता है उसे 30,000 रुपये जो है वो जमा करवानी होगी, टैक्स की मद में देनी होगी, जहाँ पे दीगर अशिया पे वो टैक्स भर रहा होता है, इनडायरेक्ट टैक्स भर रहा होता है, वहीं पे अब डायरेक्ट टैक्सेस तनख्वाहदार तबका काफ़ी परेशान है। जी मेहर इमरान, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। आगे बढ़े, सरकारी अस्पतालों में नॉन क्लिनिकल के बाद क्लिनिकल शोबे भी ठेके पर देने का फैसला। मरीजों को बेहोश करने वाला शोबा एनेस्थीसिया भी आउटसोर्स किया जाएगा। सरकारी अस्पतालों की इमरजेंसी वार्ड्स भी प्राइवेट शोबे के हवाले करने का फैसला। सरकारी अस्पतालों में बच्चा इमरजेंसी वार्ड्स भी निजी शोबे को दिए जाएंगे। सरकारी अस्पतालों में नॉन क्लिनिकल के बाद क्लिनिकल शोबे भी ठेके पर देने का फैसला है। मरीजों को बेहोश करने वाला शोबा एनेस्थीसिया भी आउटसोर्स किया जाएगा। इसी हवाले से मजीद हमें अपडेट करेंगे जाहिद चौधरी। जी बताइएगा, जनूबी पंजाब के कौन कौन से अस्पतालों को आउटसोर्स किया जाएगा? जी, हुकूमत का सरकारी अस्पतालों में जो नॉन क्लिनिकल हैं उनके बाद अब क्लिनिकल शोबे जो हैं उनको भी आउटसोर्स करके ठेके पर प्राइवेट फॉर्म्स को देने का फैसला किया गया है। और इस हवाले से जो है वो जो मरीजों को बेहोश करने वाला शोबा एनेस्थीसिया है वो भी इस आउटसोर्सिंग के अमल में अब शामिल कर लिया गया है कि बेहोशी के डॉक्टर्स जो हैं और ये जो तमाम उसका जो इक्विपमेंट होगा, तमाम जो उसके जो है वो मशीनरी होगी वो भी जो है वो अब ठेके पर होगी। इसके साथ साथ सरकारी अस्पतालों की इमरजेंसी वार्ड, इसके अलावा जो पीड्स इमरजेंसीज हैं, बच्चा इमरजेंसीज हैं, चिल्ड्रन अस्पतालों की
वो इसमें शामिल की गई हैं, जबकि जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेंटर्स हैं इन अस्पतालों के, सरकारी अस्पतालों के, वो भी जो है वो आउटसोर्स करके प्राइवेट शोबे के जरिए जो है वो चलाने का फैसला किया गया है। जबकि गुर्दे और मसाने से पथरी निकालने के लिए लेजर टेक्निक के जरिए जो लिथोट्रिप्सी मशीनें हैं वो भी अब जो है वो ठेके पर लगेंगी। और इस जराये के मुताबिक जो मंसूबा है, इस पर अमल दरामद का आगाज बाबुल विक्टोरिया अस्पताल, डीजी खान टीचिंग अस्पताल, शेख जैद अस्पताल, रहीम यार खान, साहिवाल टीचिंग अस्पताल और चिल्ड्रन अस्पताल फैसलाबाद से किया जा रहा है। जी जाहिर, ये भी बताइएगा आउटसोर्सिंग करने की क्या वजह है? जी, इस हवाले से जो महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ के जो काम है उनकी जो है वो हमेशा से ये एक जो है वो इस हवाले से मौक़िफ़ रहा है, जिसकी बुनियाद पे जो है ये आउटसोर्सिंग की जाती है कि इससे जो परफॉर्मेंस होगी वो बेहतर होगी, इससे जो है वो बेहतर जो है वो सर्विसेज मरीजों को जो है वो फराहम की जा सकेंगी। लेकिन आउटसोर्सिंग से जो है वो अब तक जितने भी अस्पतालों के शोबे जो है वो आउटसोर्स किए गए हैं, खा वो सफाई हो, खा वो सिक्योरिटी हो, खा वो दीगर जो है वो शोबे हैं, तो उससे मसाइल बड़े हैं, उसमें मसाइल में कमी नहीं वाक़या हुई और उससे कोई बेहतरी आज तक नहीं आ सकी। अस्पतालों में सफाई आज भी एक जो है वो संगीन इशू है जो एड्रेस नहीं हो पा रहा। हालांकि तमाम सरकारी व टीचिंग अस्पताल जो है वो अब उनकी जो सफाई है वो ठेके पर है, इसी तरह उनकी जो हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट है वो ठेके पर है, लेकिन आज भी जो है वो अस्पतालों से जो है वो कूड़ा करकट जो है वो खास तौर पे जो हॉस्पिटल की जो इन्फेक्शियस वेस्ट है वो जो है वो चोरी होने का और बाजार में बिकने के जो है वो इल्जाम आए रोज सामने आते हैं। ये एक आउटसोर्सिंग के अमल से निजी शोबे को जब इसमें शामिल किया जाता है तो उससे वो प्रॉफिटिंग का जो एक कॉन्सेप्ट है वो आ जाता है, क्योंकि कोई भी निजी शोबे से जो है वो जब ये आउटसोर्स के अमल में शामिल होगा तो वो इसको मुनाफा बख्श कारोबार के तौर पे लेगा, ये सर्विस ओरिएंटेड नहीं रहेंगे अस्पताल। जी जाहिर चौधरी, बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। चिश्तिया पुलिस की जराइम पेशा अनासर के खिलाफ कार्रवाई, बैनुल इजलाई गफ्फारी गैंग सरगना समेत गिरफ्तार, मुलजिमान से 15 लाख मालिक की मोटरसाइकिल और दीगर सामान बरामद कर लिया गया है। आपको बता रहे हैं कि चिश्तिया पुलिस की जराइम पेशा अनासर के खिलाफ कार्रवाइयां, बैनुल इजलाई गफ्फारी गैंग सरगना समेत गिरफ्तार, मुलजिमान से 15 लाख मालिक की मोटरसाइकिल और दीगर सामान बरामद कर लिया गया। मुलजिमान मुख्तलिफ वारदातों में मतलूब थे। गफ्फारी गैंग डकैती और राजनी की वारदातों में मुलविस था, पुलिस का ऐसा कहना है। बरामद शुदा सामान मालिकान के हवाले किया जाएगा, SHO माजिद पराचा का ऐसा कहना है। मुल्तान पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों का मुख्तलिफ इलाकों में सर्च ऑपरेशन, इंचार्ज JTT इंस्पेक्टर राना मोहम्मद फारूक की सरबराही में ऑपरेशन किया गया। 55 से जायद घरों समेत दीगर अहम मकामात की चेकिंग, 113 अफराद की CRO और 20 व्हीकल्स की चेकिंग भी की गई है। मुल्तान पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों का मुख्तलिफ इलाकों का सर्च ऑपरेशन, इंचार्ज JTT इंस्पेक्टर राना मोहम्मद फारूक की सरबराही में ऑपरेशन किया गया। 55 से जायद घरों समेत दीगर अहम मकामात की चेकिंग, 113 अफराद की CRO और 20 व्हीकल्स की चेकिंग की गई। अब रुक करेंगे जहानिया का। जहानिया रेलवे स्टेशन पर सहूलियात का फुकदान, बेंचेस समेत लाइट्स टूट फूट का शिकार, मुसाफिर धूप में खड़े होकर ट्रेन का इंतजार करने लगे। मुसाफिरों के लिए पानी का भी इंतजाम नहीं। मजीद जानेंगे जैन यूसुफ से। जी जैन। बिल्कुल, मैं इस वक्त जहानिया के कदीम तरीन रेलवे स्टेशन पर मौजूद हूँ जो 1870 में कायम हुआ। वक्त के साथ जिद्दत आने की बजाय उल्टा सहूलियात का ही फुकदान हो गया। मुसाफिर सारा दिन धूप में खड़े ट्रेन का इंतजार करते रहते हैं, जबकि पानी पीने के लिए भी कोई खास इंतजाम मौजूद नहीं है। हमारे साथ इस वक्त शहरी मौजूद है, आइए इनसे जानते हैं। जी बिल्कुल, जहानिया में सिर्फ 2 ही ट्रेनें जहानिया स्टेशन पर रुकती है, जिसकी वजह से यहाँ पर रश भी बहुत ज़्यादा होता है और मुसाफिरों के लिए यहाँ पर ना बैठने के लिए जगह, बेंच जो पुराने लगे हुए थे वो टूट फूट के शिकार हो चुके हैं, ना यहाँ पर लाइट का कोई इंतज़ाम है। रात को मुसाफिर यहाँ पर डरते हैं, यहाँ पर कोई लाइट का, कोई पानी का इंतज़ाम नहीं है। गर्मी में लोग पानी के लिए बच्चे भी लग जाते हैं। यहाँ पर ना पानी का इंतज़ाम है, ना बैठने के लिए कोई मुनासिब जगह है और ना ही यहाँ पर कोई लाइट का इंतज़ाम है। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना है, शहरियों का कहना है कि रात के औकात लाइटें ना जलने से शहरी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हो जाते हैं। शहरियों ने रेलवे के आला हुक्म इस्लाह अहवाल का मुतालबा किया है। जी जैन, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। खैरोड पका के तहसीलदार मलिक जफर जितियाल को ग्रेड 17 में तरक्की दे दी गई। मलिक जफर जितियाल तरक्की पाकर असिस्टेंट कमिश्नर बन गए। हुकूमत पंजाब ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मलिक जफर जितियाल 1 साल से खैरोड पका में तहसीलदार तैनात थे।
अपडेट करते चले, तहसीलदार मलिक जफर जितियाल को ग्रेड 17 में तरक्की दे दी गई। मलिक जफर जितियाल तरक्की पाकर असिस्टेंट कमिश्नर बन गए। हुकूमत पंजाब ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। मलिक जफर जितियाल 1 साल से कैडोरपका में तहसीलदार तैनात थे। जश्न आज़ादी के हवाले से शहर औलिया में तैयारियां अरूज पर हैं। रंगारंग बैजिज, झंडियों के स्टॉल से मार्केटें पर रौनक है, जबकि मुख्तलिफ साइज के सब्ज हिलाली परचमों पर जगह जगह लहराने लगे। आपको बता रहे हैं कि रंगारंग बैजिज, झंडियों के स्टॉल से मार्केटें पर रौनक है, जबकि मुख्तलिफ साइज के सब्ज हिलाली परचमों जगह जगह लहराने लगे। इसी हवाले से मजीद तफसीलात बता रहे हैं सलमान जमीर। जी सलमान, आगाह करिएगा। जी बिल्कुल, 14 अगस्त करीब है और जो ही अगस्त का महीना शुरू होता है तो उसी वक्त ही मुल्तान में जो है वो सब्ज हिलाली परचमों की बहार जो है वो आना शुरू हो जाती है और जा बजा जो है वो मार्केट के अंदर जो है वो सब्ज हिलाली परचम और झंडियाँ, बैचेस जो हैं वो फरोख्त होना शुरू हो जाते हैं। इसी हवाले से मैं इस वक्त मौजूद हूँ मुल्तान की शाहीन मार्केट में। ये मुल्तान की सबसे बड़ी जो है वो झंडियों की और परचमों की मार्केट है। मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखा सके कि इस मेरे उल्टे हाथ के ऊपर इस वक्त स्टॉल्स जो लगे हुए हैं उनके ऊपर मुख्तलिफ किस्म के यूनिफॉर्म्स जो हैं आर्मी के वो भी लटके हुए हैं बच्चों के लिए, और उसके साथ बच्चियों के लिए जो है वो ड्रेसेस भी लटके हुए हैं, और उसके साथ साथ परी नुमा जो एक पर है तितली बनी हुई वो भी बच्चों के लिए यहाँ पर मौजूद है। मुख्तलिफ किस्म के यहाँ पर स्टॉल्स लगाए गए हैं जिसमें जो झंडे और झंडियाँ जो हैं वो फरोख्त की जा रही हैं। मेरा कैमरामैन मजीद मैं अगर आपको दिखा दूँ कि ये दूर तक ये मार्केट है और ये मार्केट जो है यह सब्ज हिलाली परचमों से भरी हुई है और लोगों की इस वक्त यहाँ पर कसीर तादाद गुजर भी रही है जो इस मार्केट को विजिट भी कर रही है। लोग जो हैं वो यहाँ पर आकर जो है वो झंडियाँ और झंडे जो हैं वो खरीद भी रहे हैं और उसके साथ साथ मुख्तलिफ किस्म के जो बैचेज हैं वो भी यहाँ पे परचेज किए जा रहे हैं। मेरे साथ दुकानदार मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर क्या कहेंगे कि कैसा रुझान देख रहे हैं इस दफ़ा 14 अगस्त का? इस दफ़ा 14 अगस्त का वो रुझान नहीं है। इस टाइम वक्त पता नहीं क्या मसला है, अवाम नहीं आ रही, महंगाई की मसला है, किस चीज़ का मसला है, अल्लाह बेहतर जाने। देख रहे हो पूरा मार्केट सुनसान बढ़िया है, बिल्कुल काम है ही नहीं, सूरत हाल बड़ी ख़राब है। अवाम आए कोई जोशो खरोश दिखाए आखिरी दिनों में तो कुछ पता नहीं है। इंशाल्लाह आएगी अवाम इंशाल्लाह। अच्छा, तो पहले जब आप यहाँ पर स्टॉल्स लगाया करते थे पहले के हालात क्या थे और अब के हालात क्या हैं? पहले के हालात तो बहुत बेहतर होते थे, अब के हालात ज़ाहिर बात है महंगाई की वजह से ज़रा सूरत हाल ख़राब है। इंशाल्लाह आखिरी दिनों में जोशो खरोश दिखाएंगे पाकिस्तान, इंशाल्लाह पाकिस्तान जिंदाबाद, इंशाल्लाह क्यों नहीं, अल्लाह खैर करे। हाँ जी, पाकिस्तान जिंदाबाद है जी। जाहिर सी बात है 14 अगस्त तो सबने मनानी है और जोशो खरोश जो है वो आखिरी दिनों में नजर आएगा। मुल्तान में गर्मी भी बहुत ज़्यादा। मेरे अकब के अंदर आप इस वक्त ये कौमी बाजा जो है हमारा वो देख सकते हैं कि कौमी बाजा भी यहाँ पर मौजूद है और उसके साथ साथ बच्चियों के लिए चूड़ियाँ भी मुख्तलिफ किस्म की यहाँ पर रखी गई हैं। स्टॉल्स के अंदर बच्चों के लिए जो है वो बैजेस भी यहाँ पर रखे गए हैं। मुख्तलिफ किस्म के रंगारंग बैजेस जो हैं वो यहाँ पर सजाए गए हैं। लोग जो हैं वो खरीदने में मसरूफ नजर आ रहे हैं और इसके साथ साथ मुख्तलिफ साइजेस के झंडों के हवाले से मैं बात करता चलूँ तो झंडे भी यहाँ पर मौजूद हैं जो कि सब्ज हलाली परचम जो है हमारा वो मुख्तलिफ साइजेस के यहाँ पर हमें देखने को मिल रहे हैं। छोटा बड़ा जो लोग हैं वो अपने साइज के हिसाब से पसंद के हिसाब से जो है वो यहाँ पर परचेज करते हैं। इसके साथ मजीद लोगों से बात करते हैं और उनके पास चलेंगे। सर ये बताइएगा कि इस दफ़ा 14 अगस्त का क्या रुझान देख रहे हैं आप? 14 अगस्त का रुझान ये है कि जिस मरतबा जो ना महंगाई भी बहुत है मगर जो सा है इतनी ज़्यादा जोशो खरोश देखा नहीं जाता। गवर्नमेंट की तरफ से अगर ऐलान हो जाए तो उसमें हमें जो सा ना काफ़ी बेनिफिट मिल सकता है। अजहर भाई हमें कुछ ऐसा नज़र नहीं आ रहा, माल तो हमने बाजार बहुत ज़्यादा भरा लेकिन हमें वो नज़र नहीं आ रहा। महंगाई की वजह से आपको यहाँ पर इस वक्त मुश्किलात का सामना है? बिल्कुल ऐसी बात है, बिल्कुल आप ये बिल्कुल सही कह रहे हैं बात। महंगाई की वजह से बहुत ज़्यादा अवाम का हम यहाँ रश ही नहीं देखते, जहाँ तो रश ही नहीं मुकता था अब पोजीशन ऐसी है कि इस मरतबा के कोई ऐसा घाक ही नहीं है कि जो आ सके। जी इस वक्त हालात जो हैं वो यही नज़र आ रहे हैं। महंगाई बहुत ज़्यादा है और गर्मी भी बहुत ज़्यादा है मुल्तान में। मगर कल इतवार है तो देखने में यह आएगा कि कल छुट्टी का दिन है तो लोग जो हैं वो हो सकता है कि यहाँ पर मार्केटों का रुख करें और बच्चों के लिए जो झंडियाँ बैजेस हैं वो यहाँ से खरीद कर और 14 अगस्त को पुरजोश अंदाज से मनाएं। जी पुरजोश अंदाज से मनाएं। जी सलमान जमीर, बहुत शुक्रिया।
सेक्रेटरी हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट पंजाब डॉक्टर फरूख नवीद की मुल्तान आमद। एचईडी सेक्रेटरीट साउथ स्टाफ और कॉलेज प्रिंसिपल के साथ अहम मीटिंग्स। सेक्रेटरी एचईडी पंजाब डॉक्टर फरूख नवीद की रूही से खुसूसी गुफ्तगू, क्या कहते हैं जानते हैं शकील सुल्तान से। जी शकील। जी बिल्कुल, हायर एजुकेशन सेक्रेटेरिएट जनूबी पंजाब की बात की जाए तो सेक्रेटरी हायर एजुकेशन पंजाब डॉक्टर फरूख नवीद साहब आज मुल्तान तशरीफ़ लाए हैं और उन्होंने यहाँ के सेक्रेटरीट स्टाफ के साथ और जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ डिवीजन से प्रिंसिपल्स के साथ भी मीटिंग की है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। जनूबी पंजाब के वाले से खबरें चल रही थी कि सेक्रेटरीट जो है वो गैर फाल हो रहा है, तो बड़ी परेशानी भी थी और कई किस्म के मसाइल थे, लीव के, ट्रांसफ़र के। तो अब कितने अख्तियारात जो हैं वो यहाँ दिए जा रहे हैं सेक्रेटरीट को, कितने मसाइल को हल किया जा रहा है? इट इज़ मोर एम्पावर्ड दैन बिफोर। हमने ना सिर्फ ये कि मेरे यहाँ पे आने की ज़रूरत नहीं है, हमारा सारा जो फाइलिंग सिस्टम है ऑलरेडी ऑनलाइन था। सो डेली जो भी फाइलें यहाँ से साउथ पंजाब सेक्रेटेरिएट से अपलोड होती थी वो सेम डे ही उन पर डिसीजन हो जाता था। बट स्टिल हमने महसूस किया, चीफ सेक्रेटरी साहब ने भी मुझे कहा कि जी आपको ज़्यादा एम्पावर करना चाहिए साउथ पंजाब सेक्रेटेरिएट को। जो मेरी डेलीगेटेड पावर्स हैं वो 90% मैंने स्पेशल सेक्रेटरी साहब को डेलीगेट कर दी हैं। अब इनको केसेस मुझे भिजवा के अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं है। लोकल मसाइल यही हल होंगे। जनूबी पंजाब के कितने कॉलेजेस हैं जिसमें एनरोलमेंट की कमी थी और उसको कितना टारगेट दिया जा रहा है कि एनरोलमेंट बढ़ाने के हवाले से? एक तो सबसे पहला काम हमने ये किया था कि हमने प्री पोन किया अपने एडमिशन्स को। प्राइवेट सेक्टर हमेशा रिजल्ट आने से पहले एडमिशन्स करता था, सरकारी कॉलेज नहीं करते थे। हमने वो इजाज़त दी कि जी सरकारी कॉलेज भी compete करेंगे और रिजल्ट आने से पहले एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। नंबर 2, हमने टारगेट 20% का दिया हुआ है अपने तमाम कॉलेजेस को कि दे विल इंक्रीज एनरोलमेंट बाई एटलीस्ट 20%। जो कॉलेजेस इसको अचीव करेंगे हम ना सिर्फ उनको अप्रिशिएट करेंगे, उनको हम अप्रिसिएशन के सर्टिफिकेट्स भी इशू करेंगे और जो नहीं कर सकेंगे मैं माजरत के साथ कहूँगा कि फिर हम उनको अकाउंटेबल भी करेंगे। सर, हायर एजुकेशन सेक्टर जनूबी पंजाब की पहले से भी कोई 30 से ज़्यादा स्कीम्स चल रही हैं, डेवलपमेंट स्कीम्स भी हैं और कुछ फ्यूचर इनिशिएटिव्स हैं कॉलेज को बेहतर करने के लिए। पहली स्कीम्स की जो आप प्रोग्रेस देख रहे हैं वो किस हद तक देख रहे हैं जनूबी पंजाब में? हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की ओवरऑल आई थिंक 100 के करीब ऑनगोइंग स्कीम्स थी, उनमें से 72 स्कीम्स इस साल फुली फंडेड हैं और वो कंप्लीट हो जाएंगे और उसमें बहुत सारी साउथ पंजाब की स्कीम्स भी शामिल हैं। नंबर 2, डेवलपमेंट के हवाले से मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि जी अनकरीब साउथ पंजाब में एक नई यूनिवर्सिटी का हम इजाफा करने जा रहे हैं एंड उस पर अप्रोप्रिएट फोरम पे हम उसका डिसीजन अनाउंस करेंगे। सो वो भी एक साउथ पंजाब के लिए एक अनदर गिफ्ट होगा। सेक्रेटरी हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट पंजाब का ये कहना है कि साउथ पंजाब को यूनिवर्सिटी भी देने जा रहे हैं। एनरोलमेंट के हवाले से 20% का टारगेट भी दिया गया है और पावर्स डेलीगेट करने का इशू था। 90% उनका कहना है कि हमने पावर्स यहाँ दे दिए ताकि साउथ पंजाब के लोग जो हैं उनके मसाइल यहाँ हल हो सकें और पहले से भी ई फाइलिंग सिस्टम से उनके मसाइल हल किए जा रहे थे। तो इस हवाले से आज की जो मीटिंग है उसमें तमाम प्रिंसिपल्स को भी हदायत की गई हैं और तमाम तर मसाइल को सामने रखकर उनके हल के लिए भी काम किया।